Hello, everybody. This is your science educator Nobomita Bhattacharjee, and yes, right here is my introduction. As you all can see, I have done my master's in nanoscience and technology, and I do have a teaching experience of 2.5 plus years. Have been teaching a lot of students, and before I got into this whole teaching field, I used to be a research associate in IIT Guwahati. All right, and now I'm going to tell you about some benefits of being in Unacademy platform. Yes, you are getting all the notes for free, absolutely right. But what if you want to attend some quizzes? Let's say that you love T20 matches and you love quizzes, right? So if at all you want to do that, then this is the free test links that you can see right here. You can go into this link. Also, the link is there in the description box. And please don't forget to use the code NOBITA, NOBITA. Apart from the free test series that I just told you, we do have practice sections for you, and these are specifically for science and mathematics. So please do go check out the practice sections. अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं and you want to practice a lot of questions, आपको सवाल कहाँ से मिलेंगे, उस सब के लिए आपको जाना है प्रैक्टिस सेक्शन में, जो कि है यहाँ पे, और इसके लिए भी आपको कोड इस्तेमाल करना है नोबिता. Apart from this, we do have a lot of free classes which are also known as special classes in Unacademy's platform. So if you want to be in the special classes, then you have to unlock the special classes, which is the new system that we have right now. So go to the special class, download the Unacademy app, learning app from the Google Play Store, and then you can find a lot of special classes. If you want to unlock them, again, don't forget to use the code NOBITA. Apart from all of these free classes, if you are liking the content that we are providing you, and let's say that you want to learn from us even better, then you can go ahead with the Plus and Iconic classes, where the India's top educators teach you. There are regular doubt solving classes, so I can promise you that you will never walk alone with any doubt. Alright, so we do have a lot of classes. You can go check out the Unacademy website as well if you want to know about all of these. Plus and Iconic classes are the paid platforms where you get a lot of benefits, specifically like doubt solving classes, live quizzes, test series, practice sections. And in Iconic class, you get personal mentor and parent connect as well. And if you want a 10% discount, then don't forget to use the code NOBITA. And now, फटाफट let's start the live school daily का dose. तो चलो everybody, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. Yeah? Bye-bye. Hello everybody, what's up? This is your science educator Nobomita Bhattacharjee, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, isn't it? चलो शुरू करते हैं. तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि नाम है चैप्टर का, और इसी में लिखा गया है मैटर. तो अब हम सब सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब मैटर क्या चीज़ है. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू देन. Did you know that everything in this universe is made up of matter? Oh yes, it is. And when I say everything in this universe is made up of matter, I mean the air that we breathe, the food that we eat, the stones that we throw, plants, animals, planets, या तो water that we drink, all of it is made up of matter. अब आप ये भी पूछ रहे होंगे, पर मैम ये मैटर को किस चीज़ ने बनाया? मैटर को बनाता है पार्टिकल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, ऑलराइट, समझ आ गया इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब ये पार्टिकल्स क्या है ये भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. आप टेंशन मत लो, बस आराम से बैठो और सुनते रहो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए. नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट what exactly is matter. Now did you know that matter is anything that has mass and volume? मास का मतलब तो सबको समझ आ गया कि मास का मतलब है वजन. वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज़ है? लेट्स फाइंड आउट. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज और दैट इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर. मतलब डब्बे में बंद पड़ा हुआ हो, या फिर जो अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है? लेट मी टेल यू. वॉल्यूम की एसआई यूनिट है क्यूबिक मीटर या फिर
m⁻³ दैट इज मीटर क्यूब, राइट? बट आपको पता है ये कॉमन यूनिट नहीं है, वॉल्यूम की कॉमन यूनिट है लीटर, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है? ऑब्वियसली कॉमन यूनिट क्यूबिक मीटर नहीं है यार। कभी आप दुकान पे गए और बोला कि भैया वो 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला कोका कोला देना? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? यू ऑलवेज से भैया वो आधा लीटर का कोका कोला बॉटल देना, इजंट इट? या ग्रेट। अब इतना समझ गए तो अब हम आगे बढ़ के समझते हैं कि ये जो मैटर है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब दिखता कैसे है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू समवन यू वुड डेफिनेटली लाइक टू सी कि उसका चेहरा क्या है, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हमने ऑलरेडी बोल दिया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि ये जो पार्टिकल्स है ना, दिस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी एंड वेरी स्मॉल, स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप सोच भी नहीं सकते कि हाउ स्मॉल दे आर, ठीक है? नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड दिस 2 पॉइंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। चलो मैटर के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब देर आर 3 पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर। सबसे पहला ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। डिड यू नोटिस कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिखा था शुगर इन वाटर वाला एक्सपेरिमेंट? यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप चीनी को पानी में जब डिज़ोल्व करते हो तो चीनी गायब हो जाती, क्यों? दैट्स बिकॉज वाटर के पार्टिकल्स के बीच में देयर इज सम स्पेस, जगह होती है जिसको चीनी के पार्टिकल्स जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो छिप जाते हैं। अंडरस्टूड? ग्रेट। आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब वो शांत बिल्कुल नहीं बैठते। यस, आप लोगों की तरह थोड़ी ना है शांत बैठते, नहीं बैठते वो लोग, ठीक है? और तीसरा पॉइंट आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक लोहे का रॉड लिया और आप इनक्रेडिबल हल्क वाले मूड में आ गए और आपने उसको तोड़ दिखाया? डेफिनेटली नॉट ना। Exactly. You cannot do that. That's because the iron particles that are present in the rod, they attract each other. और इनकी force of attraction इतनी ज़्यादा है that even if you want to, you just cannot break them apart. Alright? Understood? चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। आई नो दैट यू फाइंड इट वेरी 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 इजी एंड यू आर थिंकिंग है ये क्या मजाक चल रहा है, ये तो हम सबको आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, वी नो दैट यू नो देयर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्योंकि आप पानी को देखते ही हो, पानी सॉलिड भी रहता है, पानी गैस भी होता है, दैट इज वाटर वेपर, एंड ऑफ कोर्स पानी लिक्विड भी रहता है, इजंट इट? यस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर and when we talk about the states of matter, I'm going to first start talking about solid state. I'm going to make a drawing here. मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, देखो ज़रा, एक बक्सा बनाया मैंने, ठीक है? सॉरी, आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग, आई एम क्लोजली रिलेटेड टू पाब्लो पिकासो, प्लीज़ बेयर विथ मी। एनीवे, तो ये बक्सा बना दिया। नो 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 नो, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि ये स्पंज का बक्सा है, नहीं। दिस इज अ वुडन और अ आयरन बॉक्स, और इस वुडन या आयरन बॉक्स को आप पुश करने की कोशिश करो या फिर उसको स्क्वीज या कॉम्प्रेस करने की कोशिश करो। विल यू बी एबल टू डू दैट इजीली? आई एम श्योर नो। सो फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड कि सॉलिड हैज डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, रायता नहीं है, फैलता बिल्कुल नहीं है, एंड फिक्स वॉल्यूम्स, दैट इज नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी बिकॉज यू कैन नॉट एट ऑल कॉम्प्रेस इट। नाउ यस, एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं, राइट? एंड एज वी ऑलवेज से दैट केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। सो द एक्सेप्शन इज ऑफ कोर्स, लाइक आई जस्ट सेड, स्पंज। आपको पता है कि यू कैन ईजिली स्क्वीज या फिर कॉम्प्रेस स्पंज। वाई? इवन दो इट इज अ सॉलिड। दैट्स बिकॉज अगर आप एक स्पंज को ध्यान से देखो तो आपको दिखता है कि उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स या पोर्स है। एंड डिड यू नो कि इन बिटवीन दिस पोर्स एंड दिस होल्स देयर आर सम एयर पार्टिकल्स दैट आर ट्रैप्ड।
और जब भी आप स्क्वीज करते हो वो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं दे एस्केप आउट, वो ट्रैप्ड होते हैं और वो छूट जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, विच इज वाई यू कैन ईजिली कॉम्प्रेस द स्पंज। एम आई क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट। ऑफ कोर्स सॉलिड की बात कर ली तो लिक्विड की तो बात करनी पड़ेगी। अब मैं ड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ पे एक ग्लास, क्योंकि मेरे से बाल्टी ड्रॉ किया नहीं गया, बट आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बड़ी सी बाल्टी लो और उसमें थोड़ा पानी भर दो एंड नाउ ट्राई आउट ऑल योर एंगर, अपना सारा गुस्सा निकालो और एक उस बाल्टी में एक जोर से पंच करो। कैन यू डू दैट? वर यू एबल टू पंच द वाटर? येस यू वर। एंड डिड इट हर्ट यू? नॉट एट ऑल। तो आपको ये समझ आया कि येस यू कैन पुश और कॉम्प्रेस वाटर, राइट? एंड हाउ डिड यू डू दैट? That's because the properties of liquid state. Liquid does not have fixed shape. It does have definite volume. इसकी definite volume होती है 1 लीटर का पानी किसी भी डब्बे में डालो, किसी भी बाल्टी में डालो, 1 लीटर का ही रहेगा। 1 लीटर का पानी 2 लीटर या 500 ml का नहीं हो जाएगा। And it can be compressed. ठीक है? अब एक बात बताओ, liquids can flow. आप सबने देखा होगा, राइट? Liquids can flow and that's why they are known as fluids. ठीक है? अब आ रही है दूसरा फैक्ट, ठीक है? चलो दूसरा फैक्ट बताती हूँ। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर कैन डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। माने इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीनी हो या नींबू पानी हो या ऑक्सीजन हो, पानी में डिसॉल्व ज़रूर करता है, ठीक है? और अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं द गैसियस स्टेट के पास। अब ये गैस कैसे बनाए? मिल गया आइडिया। हाँ, आई एम गोइंग टू मेक टी कप, ठीक है? मैंने एक चाय की कप बनाई है और चाय के कप के ऊपर देखो धुआं दिख रहा है ना? और वो धुआं क्या है? वाटर वेपर है, स्टीम है, इजंट इट? और उसको अगर आप कॉम्प्रेस करने की कोशिश करो, अपने पंजे में लाने की कोशिश करो, कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स। That's because the gaseous state is highly compressible. There is no fixed shape at all. आपको गैस वोल्डेमॉर्ट की नोज़ की तरह भी दिख सकती है और आपको गैस क्लाउड की तरह भी दिख सकती है, वही धुआं, या फिर वो हैलो की तरह भी दिख सकती है, किसी भी तरह दिख सकती है, राइट? सो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप एट ऑल, ठीक है? अब जब मैंने गैस की बात कर ली ना, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो कि है काफ़ी बेमिसाल, और यहाँ पे मैं सवाल पूछती हूँ, हाउ डज द स्मेल ऑफ द फूड रीच आवर नॉस्ट्रल्स इवन इफ वी आर फार अवे? माने अगर आपके पड़ोसी बिरयानी बना रहे तो आपको पता कैसे चलता है कि वो बिरयानी बना रहे? हमेशा तो वो फ़ोन करके बताते नहीं होंगे ना कि बेटा बिरयानी बन रही है, आ जाओ ना, नहीं बताते होंगे। तो आपको कैसे पता चलता है कि पास वाले अंकल के घर पे ना बिल्कुल आज बिरयानी बन रहा है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, मतलब फूड की जो स्मेल होती है उसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जब पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं द एयर पार्टिकल्स दे कीप स्प्रेडिंग फार एंड अवे फ्रॉम द सोर्स एंड दैट इज व्हाई इट रीचेस टू आवर नॉस्ट्रल्स एज वेल एज इट कैन गो further away. So everybody, did you understand this? क्या आप लोगों को समझ आया? अब मेरे पास एक और सवाल है। ये सवाल मैं बेमिसाल नहीं कहूँगी क्योंकि इस सवाल को सुनते ही आप कहोगे कि मैडम कितनी स्टूपिड सवाल है ये, राइट? चलो बात करते हैं। एनीवे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स दो? हाँ, सब हंस रहे हो ना इस सवाल पे, बोलोगे क्या बात कर रहे हो मैम? ऑफ कोर्स यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। आपने पानी को देखा है, पानी हर रूप रंग में मिलता है आपको। आइस दैट इज सॉलिड, यू गेट वाटर वेपर दैट इज गैसियस, और वाटर इज लिक्विड। ऑफ कोर्स यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी कैन बी कॉल्ड एज बेमिसाल, तो चलो पता करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर? We know that it can change the state, but चलो ध्यान से अच्छे से थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। Let me draw some particles of matter. मैंने particles of matter बनाया यहाँ पे छोटा छोटा और इनको प्रोवाइड किया हीट। जैसे इनको प्रोवाइड किया हीट, you know that heat is a type of energy, isn't it? और जैसे इन पार्टिकल्स को मिलता है एनर्जी, इससे क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, द पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। मतलब पहले जैसे वो वाइब्रेट या फिर नाचना गाना चालू था, उससे और थोड़ी सी ज़्यादा नाचना गाना और थोड़े जोश के साथ शुरू हो जाता है।
Now what happens here is that the forces of attraction between the particles are kind of reduced. जो हम हीट सप्लाई करते हैं उससे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा तोड़ने की कोशिश किया जाता है एंड द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन. वो अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और आसपास फ्रीली मूव करना चालू कर देते हैं. समझ आया? चमका कि नहीं? द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, जो भी एनर्जी सप्लाई हुई हीट से वो ओवरकम कर लेती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैं यहां पे बना रही हूं एक आइस. और अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग. मुझे पता है कि इट इज़ अनबेरेबल बट प्लीज़ बेयर विथ मी. आइस ड्रॉ किया और आइस के आसपास मैंने थोड़ा सा वाटर ड्रॉ किया विच यू हैव प्रॉबेबली सीन. आप जब भी आइस को बाहर रखते हो आपको दिखता है कि उसके आसपास में थोड़ी सी वाटर भी बन जाती है. देयर इज़ अ स्टेज that you reach when the solid melts and it is converted to liquid. Yes? Now, this everybody knows. I'm going to tell you something else that also you all know, and that is that the minimum temperature, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाती है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. बाय द वे, प्रोवाइडेड इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मिनिमम टेम्परेचर अचीव होना जिस पे सॉलिड मेल्ट करती है टू फॉर्म लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, ये तो सबको पता था. नाउ कमिंग टू अ न्यू पॉइंट. नाउ डिड यू नो दैट कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आपको पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताती है. मतलब ज़्यादा, द मोर द मेल्टिंग पॉइंट द मोर स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. अंडरस्टूड? ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा फैक्ट बताने वाली हूँ. वो है ये कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, आप सबको पता है कि मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड होना इज मेल्टिंग. बट डिड यू नो दैट दिस प्रोसेस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. हाँ जी, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. चलो ये तो समझ गया. अब हम एक और दूसरी चीज की बात करते हैं. व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. वेयर डज द हीट एनर्जी गो? मैंने आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी. चलो मैं समझाती हूँ एक सेकेंड. अब क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपने बर्फ रख दिया है एक कटोरे में और आपने एक थर्मोमीटर लगाया. आप देख पाएंगे कि जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता थर्मोमीटर में वो 0 डिग्री सेल्सियस ही इंडिकेट करता रहता है. Why does that happen? So let me tell you the answer here. So the answer is, जब आप कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते रहते हो इस ये जो सिस्टम है ना, आपने कटोरे में जो आइस रखा, ये जो सिस्टम है आपने कंटिन्यूस हीट सप्लाई किया डेफिनेटली. बट आपको पता है ये हीट कहाँ यूज अप हो रहा है? ये हीट यूज हो रहा है इन चेंजिंग द स्टेट. यहाँ पे ये सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन हो रही है वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है. यहाँ पे वो हीट इस्तेमाल हो रही है टू ओवरकम द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना उसको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. The heat energy is absorbed by ice, of course, but there is no rise in temperature. That's because this heat gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat of fusion. Latent का मतलब hidden और fusion solid to liquid. अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं? Yes, exactly that. तो समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, विच इज ऑफकोर्स समथिंग दैट इज वेरी न्यू टू अस और हमें पता नहीं है. सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नहीं समझे ना? दोबारा समझाती हूँ, सुनो. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, कितने प्रेशर में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे? मेल्टिंग पॉइंट पे. उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इजी है ना?
अंडरस्टूड राइट? ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हुए दोबारा आते हैं एक वेरी ऑब्वियस फैक्ट पे, विच इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड और एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ कोर्स यू नो. सबको पता है कि जिस टेम्परेचर में लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हुए, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसमें इतनी मतलब ये फैक्ट मेरे को बताने की क्या ज़रूरत थी, राइट? अभी समझ आ जाएगा. देखो यहाँ पे एक और नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अभी के अभी, और ये नया चीज़ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो अभी आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था. अब उसी सेम कॉन्सेप्ट को ज़रा इधर लगाया जाए वाइल बॉइलिंग इट. ठीक है, अब यहाँ तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पानी को बॉईल करोगे तो आपको पता है कि पानी की बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ डिड यू नो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से थर्मोमीटर में टेम्परेचर का कोई मतलब यू विल नॉट सी दैट द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन थर्मोमीटर. दैट्स बिकॉज जब तक पूरा का पूरा पानी वाटर वेपर पे चेंज नहीं हो जाता तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं हिलेगा. वाई? Because there is a new concept called latent heat of vaporization. So what is latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization is वो heat energy जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे. दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आसान, सेम कॉन्सेप्ट एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस नाम थोड़ा सा अलग है और स्टेट अलग है. अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पढ़ लिया है कि सारे के सारे सब्सटेंस जो हमारे आस पास है वो क्या करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. जैसे जैसे आप उनको हीट एनर्जी देते रहते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इज दैट कि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में जाता है और लिक्विड से गैस में जाता है. बट हियर इज एन एक्सेप्शन अगेन. क्या आपने नैफ्थलीन बॉल्स देखा है? नैफ्थलीन बॉल्स को आपने, आई एम श्योर, आई कैन गारंटी कि कभी आपने लिक्विड स्टेट में नहीं देखा होगा. वाई? बिकॉज नैफ्थलीन बॉल्स डायरेक्टली गो टू द गैसियस स्टेट, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट. उरी बाप रे, ये क्या नया माजरा है. चलो बात करते हैं. यहाँ आता है दूसरा कॉन्सेप्ट. अब हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन. यार ये सब्लिमेशन क्या है? ये तो नया चीज़ है. सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पता था, बॉइलिंग पता था, सब्लिमेशन क्या चीज़ है? चलो बात करते हैं. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन. मतलब ये जो नैफ्थलीन बॉल्स जो ये मैजिक करता है ना, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस, दैट इज सब्लिमेशन. ठीक है, आ गया समझ? ग्रेट. अब हम यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेसेस देख लेते हैं ना. देखो, सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन और लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज solidification. I'm very sorry for my handwriting, but that is solidification. SOLIDIFICATION. आगे, liquid to gas is vaporization और gas to liquid is condensation. Solid to gas is sublimation and gas to solid is deposition. Easy है ना? Got it? Correct? चलो आगे बढ़ते हुए यहाँ से. Now we are going to understand what is the effect of change of pressure. चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट, असर हम समझ गए. प्रेशर चेंज करने पे क्या असर होगी इसको भी समझते हैं. चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ और यहाँ पे सबसे पहला मैंने एक यहाँ पे लेट्स से दैट आई हैव टेकन अ सिलेंड्रिकल बीकर और उस पर मान लो कुछ गैस है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पिस्टन बना दिया और इस पिस्टन से आई एम ट्राइंग टू पुश द गैस. ठीक है, और एज आई कीप पुशिंग इट, डू यू सी दैट आई एम ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर. Right? I am doing that. You can see. See, in the first beaker, they're a lot far away. In the second one, they come a little closer. In the third one, they come even more closer, isn't it? So what do we understand? We understand that if you apply pressure and if you reduce the temperature, did you know that you can liquefy gases? Oh yes. And what is the example? The example is आपके घर पे LPG cylinder होती है, liquefied petroleum gas. That is done this way.
एंड सॉलिड आइस विच इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली. आपने देखा होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट? आपने देखा है, राइट? ड्राई आइस, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं. तो ये ड्राई आइस को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाता है. क्या आपको पता था? यस, इट इज केप्ट स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. ठीक है, ऑल राइट. मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो गैस से लिक्विड नहीं बल्कि गैस से सॉलिड तक पहुंच गया, है ना? यस, मतलब इफ यू आर पुटिंग इन मोर प्रेशर देन यू आर गोइंग टू से दैट द प्रेशर इज मोर, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से हियर. अब आगे बढ़ते हुए लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस इवेपोरेशन. अब बोलोगे कि मैम ये तो बोरिंग सा है, बचपन से पढ़ते आए हैं. ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है ना इवेपोरेशन, जो कि आप इतने सालों से कहते आए हैं, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन. नो, लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर. आपको पता है क्या? इवेपोरेशन इज नॉट जस्ट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस. Or we can say that the phenomenon of change of liquid into vapors is evaporation. Yes, but at what temperature? At a temperature that is lower than boiling point. In fact, at any temperature that is lower than boiling point, मतलब मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, बट 40 डिग्री पे भी इवेपोरेशन होता है, 50 पे भी होता है, 45 पे भी होता है, 70 पे भी होता है और 24 और 30 पे भी होता है. सो एट एनी टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, इफ द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर, देन इट इज नोन एज इवेपोरेशन. कूल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. कुछ फैक्टर्स होती है जो कि हर एक चीज़ को कुछ चीज़ों जो आई मीन टू से कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती है. तो यहाँ पे इवेपोरेशन भी कुछ ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया. मतलब चीज़ें जितनी फैली हुई होंगी वहाँ से उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होगी. तभी आपकी मम्मी कहती है ना कि बेटा अगर कपड़े बाहर टांगते हो तो उनको एकदम खींच के डाला करना वॉशिंग लाइन पे, सो दैट they can evaporate very fast, so that the water can evaporate very fast. Increase in temperature. टेम्परेचर जितनी ज़्यादा होएगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और इससे क्या होगा कि पार्टिकल्स विल बी एबल टू मूव अवे फास्टर. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब अपने आसपास कितनी ज़्यादा वाटर वेपर है. जितना कम वाटर वेपर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन तेज़ होगा. और फाइनली विंड. Wind will also play a very important role in in evaporation. कैसे? जितनी तेज़ हवा होगी उतनी जल्दी क्या होगी? वाटर वेपर जो कि प्रेजेंट है एयर में वो मूव हो जाएंगे और इससे क्या होगा? जल्दी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा. अंडरस्टूड, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स एड्रेस वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क. हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? हमें पता है कि जब समर में हमें पसीना आता है तो पसीने की वजह से आवर बॉडी ऑल्सो गेट्स कूल्ड. क्यों? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जो कि हमारे शरीर पे है वो क्या करते हैं कि अब्जॉर्ब एनर्जी, मतलब दे अब्जॉर्ब, आसपास से एनर्जी को खींच के ले जाते हैं. ठीक है, और इससे क्या होता है कि आसपास कोल्ड हो जाता है. बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, देखो इवेपोरेशन हुआ, जब इवेपोरेशन हुआ कुछ एनर्जी लॉस हुई, और जब एनर्जी लॉस हुई तो उसको रीगेन करने के लिए जो भी लिक्विड रहता है वो और एनर्जी अब्जॉर्ब करता है. ठीक है, और इससे क्या होता है कि सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड. समझे? नहीं? चलो एक और बारी समझाती हूँ. देखो ऐसा है कि इवेपोरेशन को होने के लिए चाहिए हीट एनर्जी, राइट? और ये उसको मिल रहा है, मतलब लिक्विड पार्टिकल्स को मिल रहा है हीट एनर्जी. तो जब लिक्विड पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिल गए और वो इवेपोरेट हो गए तो इससे क्या हुआ? सिस्टम में एनर्जी की कमी पड़ गई. जैसे ही सिस्टम में एनर्जी की कमी पड़ गई, जो बचे कुछ लिक्विड्स है वो क्या करते हैं? इस एनर्जी को कवर अप करने के लिए आसपास से और थोड़ा हीट एनर्जी ले लेते हैं, और इससे क्या होता है कि आसपास से जब एनर्जी ले लिया तो पूरा सराउंडिंग कूल डाउन हो जाता है. अब समझा? आ गया समझ? चलो दूसरा सवाल.
वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हमें गर्मी में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? दैट्स बिकॉज कॉटन इज़ अ वेरी गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर. कॉटन आसानी से पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है, और जब वो पानी को अब्जॉर्ब करता है इसका मतलब है कि पसीना भी अब्जॉर्ब करता होगा, और जैसे पसीना अब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है कि कॉटन कैन ऑल्सो एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर कैन ईजिली अब इवेपोरेट इट. ठीक है, दैट इज वाई वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. ऑल राइट, आगे बढ़ते हुए आखिरी जेनेरिक सवाल. ठीक है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? अब बात ऐसी है कि आपने ग्लास में रखा है आइस कोल्ड वाटर, और आपके आसपास जो वाटर वेपर है वो तो एक हायर टेम्परेचर पे है, राइट? अब ये वाटर वेपर जैसे ही आपके ग्लास के साथ आके टकराता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ही कम है, क्या होता है कि ये वाटर वेपर कॉन्डेंस हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट पे आ जाता है, अपने वेपर स्टेट से, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट पे आ जाता है, जो कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह दिखते हैं. दैट वॉज ईजी, राइट? चलो आगे बढ़ते हुए, लास्टली दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इज समथिंग कॉल्ड एज प्लाज्मा. ये प्लाज्मा क्या है, राइट? चलो बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में. एक्चुअली सिर्फ प्लाज्मा नहीं, वी गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. तो आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस समझ आ गया, एंड यू अंडरस्टूड कि गैस में पार्टिकल्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है क्योंकि वो दूर दूर रहते हैं और मूव करते रहते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा. अब गैस से भी ज़्यादा अगर मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जिसके पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स भी से भी ज़्यादा एनर्जी स्टेट में है, क्या बोलेंगे? दैट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा के पार्टिकल्स दे आर सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड और आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं. और जो दूसरा स्टेट मैंने बताया वो है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. और ये बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट होता है सॉलिड्स में पार्टिकल्स के पास सबसे कम एनर्जी होता है. दैट्स व्हाट वी लर्नड, राइट? बट क्या आपको पता है कि यहाँ पे सॉलिड से भी अगर और कम कर दिया जाए एनर्जी को तो क्या होगा? तब जाके बनेगा बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. मतलब अगर आपने एक गैस लिया और उसको एक्सट्रीमली कूल डाउन कर दिया, एंड द गैस इज सपोज टू बी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, तब जाके वो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बनेगा, जिनमें पार्टिकल्स थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं, अनलाइक ऑल द अदर टाइम जैसे कि वो नॉर्मली बिहेव करते हैं. यहाँ पे वो सारे अलाइंड हो जाते हैं एंड दे काइंड ऑफ वर्क लाइक सुपर वन सिंगल सुपर एटम. ठीक है, सो दिस इज बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. और बच्चों यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का चैप्टर. आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग दैट हैज बीन टॉट टू यू. तो चलो, विद दिस नोट, दिस इज मी नवमिता भट्टाचार्य.